हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा बी स्प्लाइन कर्व्स। ठीक है, सो वी आर डन विद बीजियर कर्व्स एंड नाउ we are going to discuss the next type of spline curve that is known as the B spline curves. Okay, so before moving about B spline curves, we must know that what were the limitation of Bezier curves. Okay, so we have discussed two limitations of Bezier curves, and I'm going to discuss them again because that gives us the basis to create a B-spline curve. So what were the limitation with the Bezier curve? First, we must understand. Okay, so the first limitation was the order of curve is fixed in Bezier curves. Okay, because it depends upon the number of control points. To perform mathematical calculation over higher degree of curve is still not required. See, in Bezier curve, what we have seen that the order of the curve is fixed. That means order or degree of the curve depends upon the number of control points. So if there are n plus 1 control points, there has to be the curve of order n. Okay, so it is fixed in the case of Bezier curve that with n plus 1 control points, we will get a curve of order n. Now let's suppose you are given 15 control points. Okay, so you are given 15 control points and you are asked to draw a Bezier curve using these 15 control points. So you have to make a curve of order 14. Okay, and that will include the polynomial terms like 1 minus u to the power 14, u to the power 13, and something like that. Okay, and mathematically we do not want that because that's a complex computations, and moreover we do not require that because I have already told you that it has been concluded that a curve of order 3 or 4 is sufficient enough to draw most of the shapes. ठीक है, तो जब हमारा 3 और 4 डिग्री से काम चली जा रहा है तो फिर why do we need curves like higher degrees, let's suppose 9 or 10, and why do we have to go through solving these higher degree polynomials? Okay, this is not a good practice, so we do not want that. But since the Bezier curve suggests that the order is always n minus 1 if there are n control points, so we have this limitation with the Bezier curve, that mathematically it gets very complicated if we have more number of control points. Okay, that is one thing. So this was the limitation in Bezier curve. B-spline curve was the attempt to remove this limitation. So in B-spline curve, we have the facility to draw a curve using n number of control points, but we can be able to choose the order of the curve. Okay, so look at the third point directly. In B-spline curve, the order of curve is independent of number of control points. In B-spline curve, the order of the curve is independent of number of control points. That means if there are n plus 1 control points, it's not necessary that the order of curve would be n. Okay, how will do that? Curve is defined by n plus 1 control points and the order k of the curve. That means B-spline curve will be defined by two variables. First one be the n, that means n plus 1 control point होंगे तो L value of n जो होगी उस पर डिपेंड करेगा, और here we will get an independent variable k that is known as the order of curve. इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको 15 कंट्रोल पॉइंट मिलते हैं and somebody asks you to draw a B-spline curve using these 15 control points, you get to choose the order of the curve. That means you can decide the value of k by yourself, that I want to make it a cubic curve or I want to make it a quadric curve. That means
the order of the curve should remain 3 or 4 even if the number of control points are 15. Okay, so k is an independent variable of from n plus 1. ओके, सो यहाँ पर k आपको खुद से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो k होगा ये ही आपके कर्व की डिग्री को बताएगा. सो अगर ये 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, k 2 है तो आपका कर्व क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 4 है तो क्वाड्रिक हो जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k. ओके, नाउ that was the first, these 3 points, first one, first one, third one and fourth one covers our first limitation that we had in Bezier curve. तो बी स्प्लाइन कर्व और Bezier कर्व में पहला तो हमें ये लिमिटेशन मिली थी Bezier कर्व में और वो हमने रिमूव कर दी बी स्प्लाइन कर्व में. दूसरा क्या है, इन Bezier कर्व the Bezier curve exhibits property of global propagation. Here it is representing Bezier curve, not the B-spline. Okay, so Bezier curve exhibits the property of global propagation. In last lecture, I used the word global control. तो मैंने आपको बोला था कि Bezier curve जो होता है वो global control provide करता है. ग्लोबल कंट्रोल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 4 कंट्रोल पॉइंट है और उनमें से आप किसी भी एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट की repositioning कर देंगे तो the entire curve would be affected. That means कि अगर आपके पास 5 या 6 कंट्रोल पॉइंट है या 4 ही कंट्रोल पॉइंट है और 1 या 2 कंट्रोल पॉइंट इधर उधर हो गए तो आपका जो कर्व है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वर्टिकल पे चेंज करने पे ग्लोबल इफेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है. द प्रोपोगेशन और कंट्रोल वो टर्म कैन बी यूज्ड. तो प्रोपोगेशन का मतलब होता है आपका कि जो इफेक्ट है इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द एंटायर एंटिटी. ओके, सो अगर आपने एक में चेंज कर दिया तो पूरा ही कर्व आपका चेंज हो जाएगा. अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है हमारे पास कि वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर बीजियर कर्व. ठीक है, बिकॉज हमारा ग्लोबल प्रोपोगेशन है. लेट्स सपोज आपने एक कर्व बना लिया है और आप चाहते हैं कि आप उसके किसी एक सर्टेन सेक्शन में ही चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, और वो कैसे होगा? जब आप किसी एक या दो, सपोज आपको पता चलता है कि हम 1 या 2 कंट्रोल पॉइंट्स को अगर रिपोजिशन कर दें तो उस सर्टेन एरिया में आपको चेंज चाहिए. बट बीजर कर्व में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज नहीं होगा बल्कि आपके पूरे ग्राफ पे डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इफेक्ट विल ट्रेवल थ्रू और प्रोपेगेट्स टू द एंटायर कर्व. सो दैट वाज द लिमिटेशन विद द बीजर कर्व, दैट we have less control on the Bezier curve. Okay, so now this point, the in B-spline curve the curve has an advantage of local propagation unlike global propagation. So Bezier curve में clearly हमें local propagation मिलता है और ये local propagation कैसे मिलता है? वो हमें ऐसे मिलता है कि it can support local propagation because it's divided into segments and it is composite curve. Basically जो B-spline curve होता है ना, ये आपका कई सारे कर्व से मिलकर बना होता है. तो हम जो एक, जैसे आपके पास 7 कंट्रोल पॉइंट्स हैं P0 से लेके P6 तक, तो स्टार्टिंग फ्रॉम P0 टू P6 जो भी आपको कर्व दिखेगा इट इज मेड अप ऑफ सेवरल सेगमेंट्स. ओके, सो सेगमेंट होने का फायदा क्या होता है? The advantage of having segment in curve is that a particular segment is influenced only by certain set of control points. That is, only part of the curve would be changed. तो हम लोकल प्रोपगेशन अचीव कैसे करते हैं? वो हम अचीव करते हैं इस सेगमेंटेशन के थ्रू. और इस सेगमेंट का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट होगा वो सारे कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा बल्कि कुछ ही कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होगा. और उन्हीं कुछ कंट्रोल पॉइंट पे अगर हम चेंज कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट, लेट्स सपोज 5 सेगमेंट है आपके कर्व में, तो हमने कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट सेलेक्ट किया और उस सेगमेंट को इफेक्ट करने वाले कंट्रोल पॉइंट पे चेंज किया तो वही सेगमेंट चेंज होगा, बाकी पूरे कर्व की शेप आपकी मेंटेन रहेगी. So in this way you will have more control over your curve. Okay, now ये जो हम बात कर रहे हैं कि सेगमेंट्स बना रहे हैं या फिर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कैसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट को इफेक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है टोटली के पे. सो मैंने आपको क्या बताया कि के जो है बेसिकली दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कर्व. तो
ऑर्डर क्या है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो के क्या होता है, ऑर्डर होता है ना। तो आपने अगर 3 सेलेक्ट किया तो आपका जो कर्व होगा वो क्यूबिक होगा। बट के दूसरी क्या चीज बता रहा है, के एक ऐसा नंबर है जो कि ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस कर्व के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कितने कंट्रोल पॉइंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट इफ देयर आर 5 सेक्शंस, ओके, सो जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा उस कर्व का, वो मैक्सिमम 3 नंबर से 3 ही कंट्रोल पॉइंट से अफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अगर आपके पास 15 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपने के सिलेक्ट किया है 4, तो किसी एक सेगमेंट को सिर्फ 4 ही कंट्रोल पॉइंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी के जो आपके पास 11 कंट्रोल पॉइंट है उनका कोई भी इफेक्ट उस सेगमेंट पे नहीं पड़ेगा। तो बाकी का जो सेगमेंट होगा जो कि उन रिमेनिंग 11 कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल हो रहे होंगे, उनका जो शेप होगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी अचीव द प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये सेगमेंट की बात हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो कर्व है उसके अंदर कितने कंट्रोल पॉइंट हैं, कितने सेगमेंट्स होंगे, के की वैल्यू क्या होगी, ऑल दोज थिंग्स। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है, सो n+1 कंट्रोल पॉइंट है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट्स सपोज 7 कंट्रोल पॉइंट। तो 7 कंट्रोल पॉइंट अगर होंगे, ठीक है, और ये आपने डिसाइड करना है कि के की वैल्यू क्या ले। सो यू हैव टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ के। लेट्स सपोज मैंने के की वैल्यू अज्यूम कर ली है 3, ठीक है। सो अब मेरे पास कंट्रोल पॉइंट 7 है और के की वैल्यू है 3। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कर्व के अंदर क्या होंगे वो जरा आप देख लीजिए, इधर देखिए। The total number of segment in curve would be n minus k plus 2. तो कंट्रोल पॉइंट 7 है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 6। कंट्रोल पॉइंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n+1 से। तो n+1 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स n इज 6। k हमने सिलेक्ट किया है 3 plus 2. So the formula यानी total number of segments in the curve would be n minus k plus 2, that means 5. तो आप सीधा ये ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 7 कंट्रोल पॉइंट लिया है, दैट मीन्स P0 से लेकर P6 तक हमारे पास कंट्रोल पॉइंट, P0 टू P6 हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है। सो दिस कर्व विल हैव 5 सेगमेंट्स। सो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है P0, दूसरा है P1, P2, P3, P4, P5, P6। बेसिकली ये जो मैंने इस कर्व के ऊपर पॉइंट बनाए हैं ये कंट्रोल पॉइंट नहीं है, कंट्रोल पॉइंट ये सर्कल वाले, ठीक है। सो जो मैंने ये एन सर्कल कर रखे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल कंट्रोल पॉइंट्स। और इस टाइप के कर्व को देखकर आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है सिंस द कर्व इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट and it is approximating the rest of the control point. That means it's the P1 is not over the curve, P2 is not over the curve. That means this is not an interpolation curve, it is also an approximation curve where the curve must pass through the first and last endpoint. So P0 and P6 will be on would be on curve itself, but rest of the points such as this point and this point and this point would be on we have to calculate. Okay, so these are those points that we need to calculate. Okay, one sec. Now हाँ, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं हम। B-spline curve can be represented as following. Now we have the representation to represent a spline curve. ठीक है, so we had an expression to represent a Bezier curve. Now we also have an expression to represent the B-spline curve. This is the equation for B-spline. So the general format is similar to the B-spline curve. वहां पर आपका क्या होता था, I to the power 0 to n summation of I to the power 0 to n, और यहाँ पे हम यूज करते थे bi of n u multiplied by p। यहाँ पर
ये जो n वाला टर्म है NIK ऑफ u, ये जो है ये हमारा बी स्प्लाइन फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया कि बेसिस फंक्शन, ठीक है, इसको हम बेसिस फंक्शन कहते हैं। बीजियर कर्व के केस में BIN ऑफ u को हम ब्रेनस्टेन फंक्शन कहते थे। वहां पर u की रेंज जो होती थी बीजियर कर्व में वो बिटवीन 0 to 1 होती थी, ठीक है, बिकॉज पूरा कर्व इंटायरली स्टार्ट टू एंड बनता था। बट नाउ इन बी स्प्लाइन कर्व द कर्व इज composed of multiple sections, so the value of u will range from 0 to up to n minus k plus 2. And what is n minus k plus 2? It is the total number of segments in the curve. Okay, so look here in this example, since we are given 7 control points, so that will give us 5 segments by using this formula n minus k plus 2 if the value of k is equal to 3. अगर हमने k is equal to 4 ले लिया तो नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आपके सेक्शन बनेंगे। एक मैंने सेक्शन बनाया आपका P0 से लेकर के, ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली सेगमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P0 से ये वाला P1 तक आप मान के चलो, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज सेगमेंट 1, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 2, 3, 4 एंड 5। और ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने कैलकुलेट किया u इक्वल टू 0 से लेकर u इक्वल टू 1, ठीक है। द सेकंड विल स्टार्ट फ्रॉम u इक्वल टू 1 to 2, थर्ड सेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम u इक्वल टू 2 to 3। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ठीक है, u इक्वल टू 3, ओके, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप, u इक्वल टू 3 एंड इधर होगा u इक्वल टू 4 और इधर होगा u इक्वल टू 5, बिकॉज u की वैल्यू 5 होने वाली है, 6 नहीं होगी, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, सो प्लीज अब काइंडली अपडेट। ओके, सो u द वैल्यू ऑफ u वुड बी 5 हियर। सो हमने 5 सेगमेंट बना लिए, जिसमें पहला सेगमेंट जो है वो 0 से लेके 1 बन रहा है, दूसरा 1 से 2 बन रहा है एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कर्व को। अब देखिए, अब थोड़ा भी अगर आपको के को लेकर डाउट है तो मैं आपको बताती हूँ कि के एक्चुअली क्या है। मैंने बोला के एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि कर्व के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इन्फ्लुएंस कर सकते, ठीक है। तो मैंने ले लिया है k इक्वल टू 3, मैं 4 भी ले सकती थी, मैं 2 भी ले सकती थी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। Now, since k is equal to 3, segment 1 can be influenced by, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं और k की वैल्यू 3 है, तो P0, P1 और P2 जो होंगे वो हमारे 3 ऐसे कंट्रोल पॉइंट हैं जो कि सेगमेंट 1 को इफेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि इफ आई चेंज द पोजीशन ऑफ ईदर P0, P1 and P2, this particular portion of the curve would be affected. Okay, segment 2 can be influenced by P1, P2, P3. Segment 3 can be influenced by P2, P3, P4. Segment 4 can be influenced by P3, P4, P5. Segment 4 can be influenced by P4, P5, P6. इस तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज आती है हमें कि हाँ, डायरेक्ट आप इधर देखिए कि लोकल प्रोपोगेशन बेसिकली अचीव कैसे हो रहा है। वैसे तो आपको शायद यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इधर देख करके इस डायग्राम को देख कर बता दूं, तो यहाँ पर अगर आप इधर देखिए तो आप देखिए कि P0 की अगर मैं बात करूं तो P0 जो है वो कितने सेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। P0 can influence only a single segment, that is the first segment. Okay, so P0 is affecting only first segment. इधर कहीं तो P0 का नाम नहीं है, ठीक है। P1 can affect only 2 section, because आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पहला सेक्शन था वो इफेक्ट हो रहा था P0, P1, P2 से, तो P0 इसी को अफेक्ट कर रहा है। जो दूसरा सेक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है, तो हाँ, अगर P1 की बात करें तो P0, P1, P2 ये पहले सेगमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है और P1, P2, P3 ये दूसरे सेक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से P1 जो है ये 1 और 2 सेगमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बात आती है P2 की, तो P2 आप देख लीजिए, P2 कर रहा है P1, P2, P3 यानी कि पहले सेगमेंट को, P2, P3, P4 दूसरे सेगमेंट को,
ठीक है, तो यहाँ आप देखो 1 2 3 तीन सेगमेंट्स को ये P2 चेंज कर रहा था, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट, इस तरीके से चेंज कर रहा है। तो अगर लोकल प्रोपगेशन क्या कह रहा है, लोकल प्रोपगेशन ये कह रहा है कि लेट्स सपोज अगर मैं P5 की बात करूं तो P5 किससे चेंज करेगा, P4 P5 P6 को, और P3 P4 P5 को, दो को ही चेंज कर सकता है। तो अगर मैं P5 को चेंज करूंगी तो इन दोनों पर्टिकुलर सेगमेंट्स पर, पहले और दूसरे सेगमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सो जस्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ P5 और जस्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ P0, I can experience change only on those segment where this particular control points are participating. Okay, I hope this is clear now. Okay, नॉन यूनिफॉर्म बी स्प्लाइन कर, बेसिकली जो हम कर पढ़ रहे हैं बी स्प्लाइन कर भी नॉन यूनिफॉर्म ही, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहाँ से होता है, सिंस डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स कैन इन्फ्लुएंस डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड। हम क्यों नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी कंट्रोल पॉइंट हैं वो इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट को अफेक्ट करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि P0 भी 3 सेगमेंट को कर रहा है, P2 भी 3 सेगमेंट को कर रहा है, P3 भी 3 सेगमेंट को कर रहा है, नहीं, P0 एक ही सेगमेंट को चेंज कर रहा है, P1 2 सेगमेंट को चेंज कर रहा है, P3 3 को कर रहा है, P4 3 को कर रहा है, P5 2 को कर रहा है, P6 1 को कर रहा है, यानी कि you can see the change in the number of segments that they can influence. This property makes it a non-uniform B-spline curve. Okay? अब जरा हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर हमें कोई बीजर कर्व बनाना है विद n इक्वल टू 5, n 5 है यानी कि डिग्री 5 रहने वाली, n इक्वल टू 5 का मतलब है कंट्रोल पॉइंट हमें मिले 6, ठीक है। सो बीजियर कर्व में डिग्री क्या हो जाएगी 5। तो अगर आपको बीजियर कर्व की इक्वेशन याद होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था bin ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय pi, ठीक है। तो वहां पर अगर हम x कंपोनेंट निकालेंगे तो वो अगर bin अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं बायनोमियल तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, यानी कि आपको 5 की टर्म्स में, 4 की टर्म्स में, 3 की टर्म्स में मिलेगा। और आप देखिए इनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, x0 x1 x2 x3 x4 x5। अगर आप मिनिमम वैल्यू u की क्या रखते हो, जीरो रखते हो, तो अगर आप जीरो भी रखोगे तो पहला टर्म जो ये वाला जो वैल्यू होगी आपकी 1 आएगी। सो नन ऑफ दीज टर्म्स वुड बी जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी टर्म जीरो नहीं हो रहा है दैट मीन्स कर्व के ऊपर जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक्स उसके एक्स या वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने में जितने भी कंट्रोल पॉइंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाला जो x0 है, x1 है, x2 है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। सो every control point is participating to calculate a point on curve and none of these values would be zero. तो इसी वजह से हमें यहाँ पर ग्लोबल प्रोपोगेशन एक्सपीरियंस होता है कि एक पॉइंट को कंट्रोल करने, एक पॉइंट को कैलकुलेट करने में सारे ही कंट्रोल पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक में भी चेंज करोगे तो पूरे कर्व में चेंज दिखेगा। व्हाइल इन बी स्प्लाइन कर्व मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखाई है, ये देख लीजिए आप, आई से लेके 0 से लेके n, n i के समेशन है, तो i के मतलब सपोज आपका हमने 5 लिया ना डिग्री, तो ये 0 से लेकर के 5 तक जाएगा, ठीक है, 0 से लेके 5 तक जाएगा ये टर्म। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे किससे, k की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो 0 3 1 3 2 3 4 3 इस तरीके से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे n 0 3 x0, n 1 3 x1, n 2 3 x2, n 3 3 x3, इस तरीके से आप इसको इलेबोरेट करेंगे। और यहाँ पर u की रेंज क्या होगी, यहाँ पर u की रेंज होगी 0 से n माइनस k प्लस 2। n माइनस k प्लस 2 क्या है, n यहाँ पर 5 है, ये आपका 3 है, तो 5 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ओके,
अब इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से अगर आप लोकल प्रोपगेशन समझना चाहो तो आप देखिए, अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूंगी, ठीक है, तो पहले सेक्शन की अगर मैं बात करूंगी, जैसे यहाँ पर पहला जो सेगमेंट था, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट P0, P1, P2. So in this first segment, only these 3 points are participating. That means P0 X0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर X कोऑर्डिनेट की बात करें, P1 X1 को और P2 X2, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे तो उस केस में आपका सिर्फ ये वाला टर्म ही इन्वॉल्व होगा, बाकी टर्म तो आपके जीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर x3, x4, x5 जो है इन्वॉल्व ही नहीं होना। किसके लिए? जब u की वैल्यू 1 तक रहेगी, क्योंकि ये 4 तक जा रही है ना, 0 to 4। तो पहला सेगमेंट जो आप कैलकुलेट करोगे वो किसके लिए करोगे? 0 to 1। तो फॉर 0 to 1 only these 3 terms would give some value and rest of these terms would be 0, ठीक है। तो बाकी के टर्म अगर 0 हो गए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पॉइंट कर्व के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे कंट्रोल पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ उन पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ रहा है जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे इफेक्ट डाल, ठीक है। इस सब से मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको लोकल प्रोपगेशन और ग्लोबल प्रोपगेशन में पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन देखी है, ये तो जनरल स्प्लाइन की भी इक्वेशन थी, सेम इक्वेशन आपने यहाँ पे पढ़ी, बी स्प्लाइन कर्व में भी पढ़ी। तो अभी हमें फर्दर इसको डिटेल में पढ़ना है कि ये जो बेसिस फंक्शन है ये एक्चुअली क्या है, ठीक है। अभी मैंने इसको सिर्फ आपको इलैबोरेट करके दिखाया था, इसकी वैल्यू क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व अभी तक मैंने जितना बताया वही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। अगेन यू कैन ऐड योर ओन प्रॉपर्टीज। जैसे अब देखिए, द कर्व इज मेड अप ऑफ n - k + 2 सेगमेंट्स, ये आपको अभी मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि ये जो बी स्प्लाइन कर्व है इट्स अ कंपोजिट कर्व बिकॉज वी वांट टू हैव अ लोकल प्रोपगेशन, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स वुड बी n - k + 2 वेयर n जो होगा ये आपको कंट्रोल पॉइंट -1 होगा, कि आपको चूज करना है, या क्वेश्चन में आपको गिवन होगा +2, ठीक है। ओनली k कंट्रोल पॉइंट्स अफेक्ट एनी सेगमेंट ऑफ द कर्व, ये भी मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। थर्ड, अ गिवन कंट्रोल पॉइंट अफेक्ट्स 1, 2 और k कर्व सेगमेंट। अच्छा देखो, कोई कंट्रोल पॉइंट जो है वो मैक्सिमम 1, 2 या फिर k नंबर ऑफ कर्व सेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर P0 जो है वो एक ही सेगमेंट को चेंज कर रहा है, ठीक है। लाइकवाइज P6 जो है वो सिर्फ एक ही सेगमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। P1 को देखिए, ये पहले और दूसरे यानी कि 2 ही सेगमेंट को इफेक्ट कर रहा है। P5 जो है ये वाले और इस वाले सेगमेंट को ही, यानी कि अगेन P5 is influencing exactly 2 segments. Rest of the points यानी कि P2, P3 and P4 ये कितने को कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पूरे 3 सेगमेंट्स को, और 3 क्या है? एक ही वैल्यू है। तो किसी भी बी स्प्लाइन कर्व में अगर मैं आपको बोलूं कि 100 भी पॉइंट्स हैं, तो जो पहला और लास्ट पॉइंट है वो एक सेगमेंट को ही चेंज करेगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो 2 सेगमेंट को ही चेंज करेगा, और बाकी के जितने भी सेगमेंट होंगे, बाकी के जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, दैट विल अफेक्ट ओनली के सेगमेंट्स, यानी कि डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू आपने 4 ली है, 5 ली है, जो भी ली है के की वैल्यू, तो उतने ही सेगमेंट्स को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। द कर्व इज c⁻k - 2 कंटिन्यूअस। यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो के की वैल्यू जो होती है उसका -2। जैसे अगर मैंने लिया है के की वैल्यू 3, ठीक है, तो c⁻1 इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस, और फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस होता है आपका स्लोप कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी आप समझ लीजिए, इसको हम बोल रहे हैं ये जो सेगमेंट्स जो अटैच हो रहे हैं ना, ये P0 से P1 से जब आप स्विच करके जा रहे हो दूसरे सेगमेंट पे, ठीक है, फिर यहाँ से स्विच करके आप तीसरे सेगमेंट में, तो ये जो स्मूथनेस होती है ये कैसे अचीव होती है? ये कंटिन्यूटी से अचीव होती है।
तो ये कंटिन्यूटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं? जो बी स्प्लाइन कर्व है इसमें कंटिन्यूटी होती है सी टू द पावर के माइनस 2। अगेन ये भी के पे डिपेंड करती है। अगर मैंने ले लिया है के की वैल्यू 3 तो सी टू द पावर 1 कंटिन्यूस, इसका मतलब है कि दिस कर्व विल शो द स्लोप कंटिन्यूटी। अगर मैं इसको रखती हूँ 4 तो ये हो जाएगी सी टू द पावर 2 कंटिन्यूस कर्व। सी टू द पावर 2 कंटिन्यूस कर्व होता है दैट shows the curvature continuity. So that is why k की वैल्यू जो मोस्टली होती है वो 4 होती है, बिकॉज हमें किसी कर्व के अंदर स्लोप और कर्वेचर कंटिन्यूटी मैक्सिमम अचीव करनी होगी तो हमारा सारा काम सॉर्टेड हो जाता है। और के की वैल्यू ज्यादा हम 4 से लेना भी नहीं चाहते, बिकॉज हमें ऑर्डर इतना ही रखना है, इससे ज्यादा हम रखना नहीं चाहते। दैट वाज द होल आइडिया। ओके, सो यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स, ठीक है, एज बी स्प्लाइन कर्व इज अप्रोक्सीमेशन कर्व। मैंने नहीं लिखा, यू कैन ऐड दिस बिकॉज ये भी आपका अप्रोक्सीमेशन कर्व है। आप देख लीजिए द कर्व जो कर्व है इट इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, बाकी जगह से अप्रोक्सीमेट होके आ रहा है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्प्लाइन कर्व। नाउ द बेसिस फंक्शन फॉर बी स्प्लाइन कर्व जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे NIKU, इसका जो एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड वर्जन है वो बेसिस फंक्शन क्या है वो ये है। सो देख लीजिए ये आपका इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। NIK ऑफ U इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, तो पहले तो आप ये नोटिस करिए कि NIKU और NIK माइनस 1U क्यों हमें बी स्प्लाइन कर्व चाहिए। मैथमेटिकली भी इट इज मोर साउंड देन Bezier कर्व। बाय यू सी टू कैलकुलेट N ऑफ IK, ठीक है, NIK ऑफ U, you must know the value of NIK minus 1 of। तो जैसे यहाँ पर आपको करना है N30, आपको वैल्यू पता है, सॉरी N32 की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पता होनी चाहिए N31 की वैल्यू, ठीक है। और N31 की वैल्यू आपको तब पता होगी जब N30 की वैल्यू पता होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका प्रीवियस टर्म पता होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसे प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना काफी इजी होता है। ये भी आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को काफी बचाता है, इसीलिए हम बी स्प्लाइन कर्व का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, आप सारे टर्म्स यहाँ पे फैमिलियर हैं। यू का मतलब आप जानते हैं, टी का मतलब आप यही नहीं जानते, टी जो बेसिकली यहाँ पे नॉट वेक्टर होता है। तो देखिए आपको यहाँ तक इसको याद करना है, इससे न्यूमेरिकल आते नहीं है। अगर मैं आपको ये पूरा ही एक्सप्लेन करती हूँ, इट विल टेक 3 or 4 लेक्चर्स। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। एंड इसकी जो डिटेल्स होती है, इसका जो डेरिवेशन होता है, ये वो लोग पढ़ते हैं जो कि स्प्लाइन थ्योरी पढ़ते हैं डिटेल में। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, बस आपको इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए, और NIK का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टी बेसिकली क्या है, टी को हम कहते हैं नॉट वेक्टर। और टी कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक तो टी होंगे कितने, तो देखो 0 I N K प्लस टी की वैल्यू इतनी होगी मैक्सिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है n प्लस के। n क्या लिया हमने 5, k क्या लिया 3, तो 0 से लेकर 8 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ओके। और ये 3 कंडीशन है जिससे हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉट वेक्टर हमें क्यों चाहिए, नॉट वेक्टर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इस कर्व को नॉन यूनिफॉर्म बनाना है। नॉन यूनिफॉर्म बनाने का मतलब है, मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि सारे कंट्रोल पॉइंट सिमिलर नंबर ऑफ सेगमेंट्स से इफेक्ट करेंगे, और ये कर भी नहीं रहे। लेकिन हमें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, जो कर्व होगा वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से होके गुजरना चाहिए। तो ये सब अचीव करने के लिए ना हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म यूज करना पड़ता है, नॉट वैल्यू, नॉट वेक्टर का, वो हम यूज करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये जो टर्म है NIKU इक्वल टू 1 और 0,
अब मैंने आपको बोला ये रिकर्शन पे जा रहा है, तो रिकर्शन को खत्म करने के लिए भी एक कंडीशन होनी चाहिए, वो ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज. Why do we need spline curves? By and this particular expression. Okay, I hope you understood well. Thank you so much.